Okay, so in the today's topic, we will learn how to prove a given number as rational number or irrational number. We know that the rational number can be expressed in the form of the p by q and irrational number cannot be expressed in the form of the p by q. So simply, just to understand the basic fundamentals, suppose we write prove that root 2 is irrational. Suppose we need to prove that root 2 is irrational. So this cannot be proved by the calculations actually. This we need to prove by contradictions. Let root 2 is equals to a by b, where a and b are co-primes. We understand what the numbers are the co-primes. Co-primes means they are having one factor common, means that is one only, means other than one they don't have any factor in common. So these type of the numbers are called as co-prime numbers. So we have taken a and b as co-prime numbers. So if they are having more than one factor, so we can say that they are not the co-prime numbers. So firstly we have taken an assumption. अभी हमने एक assume किया हुआ है, assumption लिया हुआ है, assume किया हुआ है कि root 2 is equals to a by b, where a and b are the co-primes. a और b को हमने co-primes लिया हुआ है. So here on this is root 2 equals to a by b. On cross multiplication we get root 2b equals to a. So on squaring both sides, we get root 2b whole square equals to a square. So on squaring root 2 का स्क्वायर करोगे 2 मिलेगा, b का स्क्वायर किया b square and a square as it is. So we can write b square equals to a square by 2. So here a square is divisible by 2, therefore a will also be divisible by 2. अगर किसी नंबर का स्क्वायर डिविजन होता है 2 से तो वो सेम नंबर भी 2 से क्या होगा, डिविजन होगा. We can write it down, a square is divisible by 2, therefore a will also be divisible by 2. अभी a स्क्वायर 2 से डिविजन है तो क्या होगा, a भी 2 से डिविजन होगा. So we can take this as equation number 1. Now let a is equals to 2c, where c is any integer. C is any integer. Now in this equation we can substitute 2b square is equals to 2c whole square, because a is equals to 2c. So a square means 2c whole square. Taking this expression, 2b square is equals to, on squaring 2c square we will get 4c square. On dividing this expression by 2 we will get b square is equals to 2c square, or simply we can write c square equals to b square by 2. Again here b square is divisible by 2, therefore b will also be divisible by 2, because if any square of any number is divisible by any number, so the same number will be divisible by that number. We can write b square is divisible by 2, therefore b will also be divisible by 2. So now see that here we have written
a square is divisible by 2, therefore a will also be divisible by 2. Same thing, b square is divisible by 2, therefore b is divisible by 2. Means a और b दोनों ही अभी एक कॉमन फैक्टर मिल गया मेरे को 2. 2 क्या कर रहा है, a को भी डिवाइड कर रहा है और 2 b को भी डिवाइड कर रहा है. सो वी कैन से दैट 2 is the common factor for a and b. a और b दोनों के लिए भी 2 क्या आ गया, कॉमन फैक्टर आ गया. अभी हमने एजम्पशन में क्या लिया हुआ था, a and b बोथ आर को प्राइम्स, मीन्स दे आर हैविंग ओनली वन एज द कॉमन फैक्टर. और अभी यहाँ पे हमारे को 2 भी एज ए फैक्टर मिल गया. इसका मतलब क्या हुआ, जो हमने एजम्पशन लिया हुआ था कि a और b दोनों को प्राइम्स हैं जिनका सिर्फ 1 एज ए कॉमन फैक्टर है, वो एजम्पशन अभी हमारा यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, क्योंकि अभी 1 के अलावा भी यहाँ पे मेरे को कॉमन फैक्टर दिख रहा है जो 2 है. देयरफॉर √2 इज irrational. Now we can say √2 is irrational because this is the contradiction that a and b are co-primes. Now a and b are not the co-primes because अभी उनका 2 भी एक कॉमन फैक्टर आ रहा है. So this contradicts our assumption. Therefore √2 is irrational. So this is the common proof for proving that √2 is irrational. Same method will follow for the proving that √3 is irrational, √5 is irrational, √7 is irrational. Similar way we will proceed for the others. Now come to the next example. Suppose that prove that √3 is irrational. Now here we need to prove that √3 is irrational. Earlier we have proved that √2 is irrational. Now we will go for √3 as irrational. Same way we will proceed as the previous one. जैसे हमने √2 के लिए किया हुआ था, सेम अभी √3 के लिए भी करेंगे. Let √3 is equals to a by b, where a and b are co-primes. a and b are co-primes means they are having 1 as a common factor. 1 के अलावा और कोई भी उसमें कॉमन फैक्टर है ही नहीं. So √3 equals to a by b. Same way on squaring both sides, so this is √3 whole square is equals to a by b whole square. So we got 3 equals to a square by b square. On cross multiplication, this is 3b square equals to a square, or we can write b square is equals to a square by 3. b square equals to a square by 3. Here see a square अभी क्या है, it is divisible by 3. a square 3 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, a भी 3 से डिवाइड होगा. We'll write the same statement. Since a square is divisible by 3, therefore a will also be divisible by 3. कि अभी a स्क्वायर अगर 3 से डिविजल है तो a भी क्या होगा, 3 से डिविजल होगा. ये हमने एक अजम्पशन को लिया हुआ है. अगेन लेट a is equals to 3c, where c is an integer, c को अभी हमने कोई भी एक इंटीजर ले लिया हुआ है. नाउ सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इनटू दिस, a स्क्वायर की जगह अभी हम 3c को रखेंगे. सो ये आ जाएगा 3b स्क्वायर. इस वाली इक्वेशन में अभी हम a की जगह 3c को रखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 3b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर की जगह 3c का होल स्क्वायर. सो 3b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3c होल स्क्वायर. 3b स्क्वायर इक्वल्स टू इसका स्क्वायर करेंगे तो दिस विल बी 9c स्क्वायर. ऑन डिवाइडिंग बाई 3, we get b square is equals to 3c square, or
सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर बाई 3, 3 से इधर डिवाइड किया, बी स्क्वायर अभी 3 से आ गया। अभी सेम यहाँ पर भी बी स्क्वायर अभी क्या है 3 से डिविजल है, इसका मतलब क्या हुआ बी भी 3 से डिविजल होगा। विल राइट द सेम स्टेटमेंट, बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, therefore b will also be divisible by 3, कि अभी बी स्क्वायर 3 से अगर डिविजल है तो बी भी क्या होगा 3 से डिविजल होगा। अब देखो यहाँ से ए और बी अभी हमने यहाँ पे लिया हुआ था, ए और बी दोनों की दोनों को प्राइम्स हैं, जिसका सिर्फ जिसका फैक्टर था। अभी यहाँ पे मेरे को ए और बी दोनों के ही 3 एज ए कॉमन फैक्टर दिख रहा है। ए भी देखो यहाँ से क्या है, ए को हमने लिखा हुआ है ए इज डिविजल बाई 3, यहाँ पर भी लिखा हुआ है बी इज डिविजल बाई 3, इसका मतलब क्या हुआ ए और बी दोनों का भी 3 भी एज ए कॉमन डिविजन आ गया। सो ए एंड बी हैव 3 एज कॉमन डिविजन और कॉमन फैक्टर। सो ए और बी का भी कॉमन फैक्टर क्या आ गया 3 और आ गया। यहाँ पे तो हमने अभी को प्राइम बोला हुआ था कि सिर्फ 1 फैक्टर है, अभी यहाँ पे 3 और मिल गया, इसका मतलब क्या हुआ ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। सो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स, this contradicts that A and B both are co-primes. Now A and B are not the co-primes, therefore root 3 is irrational. So root 3 अभी irrational आ गया, बिकॉज अभी यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट हो गया कि A और B जो हमने को-प्राइम्स लिए थे, A और B अभी हमारे को-प्राइम्स नहीं रह गए, A और B कि अभी 3 एज ए कॉमन फैक्टर आ गया। तो 3 अभी कॉमन फैक्टर आ गया, तो जो हमने कॉन्ट्राडिक्शन लिया हुआ था ए और बी को प्राइम्स, वो कॉन्ट्राडिक्शन अभी हो गया यहाँ पे। तो अभी रूट 3 इज इरेशनल नंबर। नाउ कमिंग टू द एक्सरसाइज 1.3, द फर्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। अभी हमें रूट 5 को इरेशनल प्रूफ करना है। तो सिमिलरली जैसे अभी हमने रूट 2 और रूट 3 के लिए किया हुआ था, 100% सेम प्रोसीजर है। विल टेक लेट रूट 5 इज इक्वल्स टू a बाई b, वेयर a एंड b आर को प्राइम्स, a and b are co-primes. We'll take root 5 equals to a by b. On cross multiplication we get root 5b is equals to a. So on squaring both sides, root 5b whole square is equals to a square. So root 5 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो ये कितना आएगा 5. So this is 5b square is equals to a square, or we can write b square is equals to a square by 5. So again here we are getting a square is divisor by 5. So अभी a square अगर 5 से डिविजर है तो a भी क्या होगा 5 से डिविजर होगा। a square is divisible by 5, therefore a will also be divisible by a will also be divisible by 5. अभी a स्क्वायर 5 से डिविजल है तो क्या a भी डिविजर होगा किससे 5 से। अभी इसी क्वेश्चन में लेट a इज इक्वल्स टू 5c। अभी हमने a को 5c सपोज एज्यूम किया हुआ है, वेयर c इज एनी इंटीजर। नाउ इन दिस इक्वेशन सपोज वी पुट दिस इक्वेशन नंबर 1। सो इस इक्वेशन में अभी a की जगह पे हम क्या रखेंगे 5c।
So take this again, 5b square is equals to 5b square equals to a square, तो a की जगह अभी 5c रखना है, तो कितना आ जाएगा 5c होल स्क्वायर. सो दिस इज 5b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25c स्क्वायर. सो ऑन डिवाइडिंग बाई 5, on dividing by 5, so we get b square is equals to 5c square, or we can write c square is equals to b square by 5. Again here b square is divisible by 5, b square से 5 से डिवाइड हो रहा है, तो b भी क्या होगा 5 से डिवाइड होगा. so we can write b square is divisible by 5, therefore b will also be divisible by 5. अभी देखो इस दोनों स्टेटमेंट से हमारे को यहाँ पे a इज डिविजल बाई 5 एंड b इज डिविजल बाई 5, दोनों a और b के कॉमन फैक्टर आ गए क्या 5. सो वी कैन राइट बोथ a एंड b हैव 5 as common factor, 5 as common factor. So this contradicts our supposition that a and b are the co-primes, because अभी a और b co-primes नहीं रह गए, उनका अभी वन फैक्टर नहीं, वन के अलावा भी फैक्टर है. कौन सा फैक्टर है 5, तो अभी वन के अलावा भी फैक्टर मिल गया 5, तो अभी ये co-primes नहीं रह गए. Therefore root 5 is irrational. तो अभी रूट 5 क्या हो गया इरेशनल हो गया, बिकॉज जो हमने सपोजिशन और एजम्पशन लिया हुआ था कि a और b दोनों को प्राइम्स है, तो a और b अभी दोनों को प्राइम्स नहीं रह गए, बिकॉज उनका अभी 5 भी है कॉमन फैक्टर आ गया. तो 5 जब कॉमन फैक्टर आ गया तो को प्राइम्स नहीं रह गए, तो अभी हमारा जो कॉन्ट्राडिक्शन था, जो हमने एजम्पशन लिया हुआ था, वो अभी कॉन्ट्राडिक्ट हो गया. देयरफॉर रूट 5 इज इरेशनल. Now come to the second question. Question number 2. Prove that 3 plus 2 root 5 is irrational. Prove that 3 plus 2 root 5. 3 plus 2 root 5 is irrational. Now we have to prove that 3 plus 2 root 5, this is now irrational. So we proceed in the almost similar way. Let 3 plus 2 root 5 is equals to a by b, where a and b are co-primes. a और b co-primes है. अभी यहाँ पे देखो इस तरह के क्वेश्चन में कभी भी करने से जितना भी रूट का जो टर्म है उसको हम एक साइड में रखते हैं, और विदाउट रूट वाला जितना भी टर्म है उसको एक साइड में लेकर के जाते हैं. सी दिस इज 3 प्लस 2 रूट 5 इज इक्वल्स टू a बाई बी, ये लिखा हुआ है अभी यहाँ पर. इसमें अभी मैं क्या करूँगा, सिर्फ रूट 5 के टर्म्स को लेफ्ट में रखेंगे, बाकी जितना भी टर्म है सारा सारा राइट में लेकर के जाएंगे. तो वी कैन टेक 2 root 5 is equals to a by b minus 3. 3 इधर राइट में जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा -3. सो रूट 5 इज इक्वल्स टू, अभी 2 इधर जाएगा तो क्या करेगा डिवाइड करेगा, तो कंप्लीट टर्म को ये डिवाइड करेगा. देयरफॉर अभी इधर जितना भी टर्म था उसको हमने ब्रैकेट के अंदर में रखा हुआ है, बिकॉज अभी ये कंप्लीट टर्म को जाके डिवाइड करेगा. तो इधर वाले टर्म को हमने ब्रैकेट में रखा और बाहर से 1/2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है. सो अभी देखो इधर लेफ्ट में सिर्फ मेरे पास रूट 5 बचा हुआ है, और राइट में कंप्लीट ये दूसरा वाला फैक्टर जिस जो विदाउट रूट में है. तो अभी ये सारे क्या इंटीजर्स हैं, सो इंटीजर्स से क्या बनाता है रेशनल नंबर्स, और ये इरेशनल टर्म्स है. ऑलरेडी हमने प्रूव किया हुआ कि रूट 5 क्या है इरेशनल है. सो इरेशनल कभी भी रेशनल नंबर के बराबर में नहीं होगा. दिस टर्म इज रेशनल नंबर एंड दिस इज इरेशनल, तो इरेशनल कभी भी रेशनल के बराबर में नहीं होगा. So root 5 is irrational. Root 5 is irrational. Therefore, irrational
will never be equal to rational one. So this will be never equal to rational. अभी irrational कभी भी rational के बराबर भी नहीं होगा, तो this contradicts our supposition. Therefore we can write 3 plus 2 root 5 is irrational. अभी 3 plus 2 root 5 क्या हो गया? irrational हो गया. तो इस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिसमें रूट वाले टर्म को हम एक साइड में रखेंगे और विदाउट रूट वाले जितने भी टर्म्स हैं सबको एक साइड में ट्रांसपोज करेंगे, फिर एक कॉमन एक्सप्रेशन लेकर के आएंगे. अभी ये इरेशनल टर्म हो गया और ये रेशनल टर्म हो गया, तो इरेशनल कभी भी रेशनल के बराबर में नहीं होगा. सो दिस इज द कॉन्ट्राडिक्शन. देयरफॉर द कंप्लीट नंबर 3 plus 2 root 5 is irrational. Now coming to the third question. Third question, suppose first part, we need to prove that 1 by root 2 is irrational. Prove that 1 by root 2 is irrational. अभी हमें ये प्रूव करना है कि 1 by root 2 is irrational or not. Same, let 1 by root 2 is equals to a by b. 1 by रूट 2 को हमने a by b लिया हुआ है और अब ये हमें हमेशा डिफाइन करना पड़ेगा वेयर a एंड b आर को प्राइम्स. a और b क्या है? को प्राइम्स मीन्स हैविंग ओनली वन एज द कॉमन फैक्टर. अभी इसका रेसिप्रोकल कर दो दोनों तरफ, तो ये क्या हो जाएगा? रूट 2 विल बी इक्वल्स टू b बाई a. इस ऊपर वाली फ्रैक्शन का भी हमने क्या किया? दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर दिया. तो 1 बाई रूट 2 बिकम्स रूट 2 बाई 1, तो 1 से डिविजन करने में सेम नंबर आएगा. a बाई बी बिकम्स b बाई a. सो रूट 2 इक्वल्स टू b बाई a. ऑन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन we get root 2a is equals to b. So on squaring both sides we get root 2a whole square is equals to b square. So this is 2a square is equals to b square or a square is equals to b square by 2. So b square by 2 मीन्स अभी b स्क्वायर क्या है? 2 से डिविजर है. अगर b स्क्वायर 2 से डिविजर है तो क्या होगा? b भी 2 से डिविजर होगा. सो वी कैन राइट b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2. देयरफॉर b will also be divisible by 2. तो अभी b स्क्वायर का 2 से डिविजल है तो क्या होगा? b भी 2 से डिविजल होगा. नेक्स्ट वी टेक लेट b इज इक्वल्स टू 2c वेयर c इज एन इंटीजर. सो अभी b को हम इस वाली एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं. दिस इज 2a स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर. सेम एक्सप्रेशन को भी दोबारा लेते हैं. दिस इज 2a स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर. सो b की जगह अभी हम क्या रखेंगे? 2c. सो b स्क्वायर है तो यहाँ पर भी ये क्या हो जाएगा? 2c का होल स्क्वायर. इस वाली एक्सप्रेशन को दोबारा लिया. सपोज वी राइट इक्वेशन नंबर 1. तो इक्वेशन नंबर 1 को हमने दोबारा यहाँ पे लिया. 2a स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर. सो b की जगह भी हमने यहाँ पे 2c लिया हुआ है, तो b स्क्वायर मीन्स 2c का होल स्क्वायर. सो दिस इज 2a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4c स्क्वायर. ऑन डिवाइडिंग बाई 2 on both sides, so this is a square equals to 2c square, or we can write c square equals to a square by 2. a square by 2. so a square by 2 means a square is divisible by 2, तो अभी a भी 2 से डिविजल होगा. since a square is divisible by 2, therefore a will also be divisible by 2. तो भी a भी क्या होगा? 2 से डिविजल होगा. अभी यहाँ पे देखो b और a दोनों की दोनों क्या? अभी हमें 2 से डिविजल हो गया. सिंस a एंड b बोथ हैव
2 एज कॉमन फैक्टर, ए और बी दोनों का अभी क्या आ गया 2 एज ए कॉमन फैक्टर, जबकि हमने अभी यहाँ पे क्या लिया हुआ था ए और बी दोनों को प्राइम्स है, तो अभी को प्राइम्स नहीं रह गए बिकॉज अभी उनका 2 भी एज ए कॉमन फैक्टर आ गया. सो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स, देयरफॉर 1/√2 is irrational. Now come to the question number 3, second part. We need to prove 7√5 is irrational. Prove that 7√5 is irrational. 7√5 को irrational प्रूव करना है अभी अपने को. Take same, let 7√5 is equals to a by b, where a and b are co-primes. A and b are co-primes. So a and b are the co-primes. We can take 7√5 equals to a by b. So only leave √5 terms to the left hand side. बाकी सारी चीज़ों को राइट हैंड में लेकर के जाओ. सो √5 इक्वल्स टू a बाई b. 7 का मल्टीप्लीकेशन इधर आके क्या हो जाएगा डिवीजन. सो दिस विल बी a बाई 7 टाइम्स b. सो √5 इक्वल्स टू वी कैन राइट a इक्वल्स टू 7b. हियर दिस इज द इरेशनल. √5 is irrational, whereas this term, this is rational. So irrational will never be equal to rational. This is the contradiction. Therefore irrational is never equals to rational. Therefore 7√5 is irrational. ये हुआ प्रूफ इसका कि 7√5 को हमने a बाई बी लिया. a एंड b आर द को प्राइम्स. 7√5 इक्वल्स टू a बाई बी. सिर्फ √5 को इधर रखा लेफ्ट में, 7 को राइट में लेकर के गया. सो दिस बिकम्स a बाई 7b. सो √5 इज इरेशनल. वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड a बाई 7b. दिस इज द रेशनल नंबर. सो इरेशनल विल नेवर बी इक्वल्स टू रेशनल. दिस इज द कॉन्ट्राडिक्शन. देयरफॉर 7√5 इज irrational. So this is the proof now. Now coming to the third part of the same question, question number 3, third part. Prove that 6 plus √2. Prove that 6 plus √2 is irrational. 6 plus √2 को अभी हमें irrational प्रूफ करना है. Let 6 plus √2 is equals to a by b, where a and b are co-primes. A and b are the co-primes. Taking this same, 6 plus √2 is equals to a by b. We will transpose every number to the right hand side, leaving behind only √2. So this will be √2 equals to a by b minus 6. √2 irrational है, a by b minus 6 ये rational है. So irrational is not equal to rational. Therefore 6 plus √2 is irrational. So 6 plus √2 is irrational. अभी हमने 6 plus √2 को a by b लिया हुआ. a and b both are the co-primes. So अभी 6 को इधर ट्रांसपोज किया मैंने, सिर्फ √2 को रखा है एक साइड में, लेफ्ट साइड में. सो √2 इक्वल्स टू a by b माइनस 6. ये कंप्लीट टर्म अभी रेशनल है और ये वाला टर्म इरेशनल है. तो इरेशनल कभी भी रेशनल के बराबर में नहीं होगा. देयरफॉर 6 plus √2 इज इरेशनल. Exercise 1.3 is over. Now we will come to exercise 1.4.